Now we are going to start the chapter staffing along with NCRT. And if you remember, in the last class I had summarized this chapter, and right now we will be doing it along with our NCRT. And as I have already informed you, you are not having anything which is deleted, so kindly go with the NCRT very carefully. The very first line, our assets walk out of the door each evening, we have to make sure that they come back to next morning. ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि ये जो है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, मीन्स किस फंक्शन के कंटेक्स्ट में दिस हैज बीन सेड, एंड दिस इज सेड फॉर स्टाफिंग. यहाँ जो एसेट्स है दे आर फॉर द ह्यूमंस. Our assets walk out of the door each evening का मतलब होता है हमारा जो स्टाफ होता है वो सुबह आता है, शाम को वापस जाता है. बट वी नीड टू मेक श्योर कि अगले दिन वो हमारे पास आए, मतलब कि हमारा जो कंपनी की जो हमारी पॉलिसीज हैं, हमारा जो रिलेशनशिप विद आवर ह्यूमन रिसोर्स, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ. दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो लोग जो है कंपनी को छोड़कर ना जाए. तो दिस इज अबाउट इन्फोसिस. जो नारायण मूर्ति है, राइट नाउ ही इज नॉट द सीईओ, बट ही हैड टोल्ड दिस. और उनका मानना था, विच इज अ कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उनका मानना था इट्स ह्यूमन रिसोर्स ऑन इट्स बैलेंस शीट. मतलब दैट सो इम्पॉर्टेंट. हम बैलेंस शीट में पैसा डालते हैं, लेकिन उनका मानना था द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ अ कंपनी is usually examined on certain financial and non-financial parameters. नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या हो जाता है? दे आर नॉट द वन विच आर रिलेटेड विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो आप ट्वेल्थ में स्टेटमेंट बना रहे हो, आप बीकॉम में बनाओगे, या फिर व्हेन यू आर एन सीए यू विल, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटस, दैट टेल्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी. बट जो हमारे एसेट्स हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स है, दैट वुड टेल द ह्यूमन स्टेटस ऑफ अ कंपनी. कंपनी की पॉलिसी स्ट्रेटजीज अगर अच्छी हैं तो कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो हमेशा खुश रहेगा. Human resources are among those new non-financial parameters that challenge the usefulness of evaluating corporate success solely on traditional methods. Human resources represent the collective expertise, innovation, leadership, entrepreneurial and managerial skills जो कि एक एम्प्लॉयज़ में होते हैं. और इसीलिए शायद इन्फोसिस जो है उसने हमेशा अपने मतलब की जो कंपनी में स्टाफ है उनको हमेशा वैल्यू किया है. एंड आई हैव हर्ड, आई डोंट नो बेटा, बट आई हैव हर्ड नारायण मूर्ति वॉज अ वेरी विजनरी लीडर. अभी तो उनके शायद सन है या उनके जो सन इन लॉ हैं वो है. He believes in sharing the wealth with his employees, leading it by example. और ऐसा मैंने सुना है about Tata. I don't know, but it is said that Tata is also very particular about his assets, about his human assets.
Now let us come to the exact word what we call as staffing. The foundation of any organization is the talented and hardworking people who are the principal assets of any firm. It is an established fact that the growth of an organization requires continual infusion of quality staff. Thus, adequate staffing provision for appropriate human resource is very essential. And that is what we call as, बेटा पेपर में ये भी एक क्वेश्चन है, right person in the right position. See, this is a very आपको मतलब कि होता होगा कि हम लोग अभी you are all in 12th standard. Definitely आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे visions होंगे. And आप लोगों को लगता होगा कि once we have come to what we call as a level, तो हमें तो वही जॉब मिलेगी जो हमने पढ़ा है. No, not every company does this. Right person in the right position का मतलब होता है कई बार the person is very talented, but the management may not be able to see that. Sometimes due to other factors, you may not be fitting the right person in the right area. उससे क्या होगा क्या, आपका जो कंपनी है ना वो हमेशा सफर करता है. I don't know about the corporate world, but yes, I have seen this. मतलब कि I have seen in my own school. हमारे स्कूल के अंदर you can say that right now ठीक है, it's मतलब मैंने सुना कि it's okay, but when I entered at that time there one branch, it was very very nice. हमारा जो पीडी विहार ब्रांच था, that was very nice. वहाँ तो सारे टीचर्स आपके जो है प्रॉपर व्हाट यू कॉल एज दे हैव बीन इन द, उनको प्रॉपर सैलरी मिलती थी. अगर आपका मतलब इंग्लिश की टीचर है तो वो इंग्लिश की ही टीचर होती थी. तो देयर वाज सर. बट जो बाकी उनके जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, जो कि छोटे ब्रांचेस होते थे और उसमें वो लोग क्लासेस अटेंड वो कर लेते थे, वहाँ पर दे डिड नॉट कीप द एडिक्वेट स्टाफ ऑल्सो एंड दे डिड नॉट कीप द क्वालिफाइड स्टाफ. एंड वन ऑफ द, मतलब आप कह सकते हो वन ऑफ द कर्स इज दिलशाद गार्डन, जहाँ इंग्लिश की टीचर्स कभी टिकती ही नहीं थी. एंड अभी भी वहाँ पर जो मैथ्स की टीचर है ना, जो रियल मैथ्स की जो मैथ्स पढ़ाती हैं, शी इज़ एक्चुअली नॉट अ मैथमेटिशियन, शी इज़ नॉट हैविंग एनी बैकग्राउंड ऑफ मैथ्स. आप सोच सकते हो, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट द राइट पर्सन इन द राइट पोजिशंस. शी इज़ एक्चुअली BA इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में मैथ्स आता है तो उनको मैथ्स दे दिया गया था 9th और 10th का. बट उनका बीएड भी मैथ्स में नहीं है और ना ही वो मैथ्स की टीचर. जो इंग्लिश पढ़ाती थी पहले, अब तो फिर बाद में तो उसको हटा दिया था, शी वॉज नॉट एट ऑल अ BA इंग्लिश टीचर. पूजा मैम करके थी, शी वॉज BSc. उनको बोला था तुम इंग्लिश पढ़ा दो. उससे क्या नुकसान हुआ था स्कूल के अंदर की नेचुरल है कि बेटा देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट वी लर्न व्हाइल वी आर डूइंग समथिंग. आप अगर BBA करते हो तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यू आर गोइंग टू बी टॉट. इफ यू आर परसुइंग BCom, आप अगर BCom कर रहे हो तो आपको बैंकिंग, आपको अकाउंट से रिलेटेड करोगे, तो नेचुरल है कि आपका जो एक्सपर्टीज होगा वो उस फील्ड में ज़्यादा होगा. कल को आप फाइनेंशियल स्टेज में जाना चाहते हो तो दैट विल हेल्प यू आउट इन BCom. अगर आप एडमिन के अंदर जाना चाहते हो MBA करके, वो आपको हेल्प करेगा. लेकिन अगर आप इन दोनों को छोड़कर आपने कुछ ऐसी चीज की है जिसका उनसे रिलेवेंट नहीं है, तो आप कैसे जाकर उस चीज को कर पाओगे. तो रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस आपका पुअर हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी से राइट पर्सन्स इन द राइट पोजीशन. ना ही हमें अंडर एस्टिमेट करना चाहिए कोई ओवर क्वालिफाइड और उसको हम कोई ऐसा पोजीशन दे रहे हैं, ना ही हमें ओवर एस्टिमेट करना चाहिए. नाउ what is staffing? After planning, selection, next is हमने organizational structure बना दिया.
अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को लगा दिया। अब हमें चाहिए प्रॉपर अथॉरिटी है तो स्टाफ भी तो लाओगे ना, मीन्स पुटिंग द पीपल टू जॉब्स। It begins with workforce planning, then it includes recruitment, selection, training, development, promotion, compensation, performance appraisal, everything. Staffing is that part of process of management which is concerned with obtaining 1 minute beta, very important. In another word, staffing is that part of process of management which is concerned with obtaining, utilizing, maintaining a satisfactory and satisfied workforce. बेटा, what is the meaning of satisfactory and satisfied? Satisfactory मतलब हमें कंपनी की तरफ से ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए which is मतलब कि जो उनके लिए प्रॉपर हो, एंड जब वो प्रॉपर होगा तो दे ऑल विल बी satisfied. Today, staffing may involve any combination of daily wager, consultant, contract employees. आजकल तो there are been changes. Staffing recognizes the importance of every single person in an organization, as it is the individual worker who is the ultimate. Staffing has been described as the managerial function of filling एंड कीपिंग फिल द पोजिशन, क्योंकि देखो बच्चा रिटायर भी होगा, इंसान की डेथ हो सकती है, इंसान छोड़ के जा सकता है, मीन्स देयर विल बी, तो उस पोजिशन को हमेशा रखना. दिस इज अचीव बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स. इसको हम वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस कहते हैं. देन हम पहले देखेंगे कितना काम है, फिर रिक्रूट करेंगे. रिक्रूट का मतलब है वी विल आस्क पीपल टू कम एंड अप्लाई. फिर हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे, उन्हें प्लेस करेंगे. जब वो अच्छा काम करेंगे तो प्रमोट करेंगे, उनको डेवलपमेंटल देंगे. इन अ न्यू एंटरप्राइज, अगर नया है तो सब कुछ आपको करना है. इन एन ओल्ड एंटरप्राइज यू मे बी हैविंग द स्टाफ एग्जिस्टिंग. In a new enterprise, the staffing function follows the planning and organizing. After deciding what is to be done, how it is to be done, after creating the structure, अब हमें चाहिए होगा कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है at different levels, टॉप, मिडिल, सुपरवाइजरी, और उनके बीच में भी आपके जो है हिरार्की जाएगी. Once the number and types of personnel to be selected is determined, अब आप हमें पता है हमें 4 अकाउंट्स ऑफिसर्स चाहिए, हमें 5 कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, हमें 10 एग्जेक्टिव्स चाहिए. मतलब हमने डिटरमाइन कर लिया, हमने देख लिया कि ये काम है, एक इंसान को इतना टाइम लगता, तो हमें 4 चाहिए. वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस. Staffing is a continuous process because
some of the existing employees may leave the organization. There might be a promotion, there might be death, कुछ भी हो सकता है. So why do we need staffing? As starting में हमने पढ़ा था that right position for the right, and it is very important कि अगर आपका staffing अच्छा होगा तो आपका human resource अच्छा होगा. आपका human resource अच्छा होगा तो performance आपकी अच्छी होगी. Why people die to work in a particular company and why people don't want to work in a particular company? The reason is the staffing policy. Basically, staffing fills the position as shown in the organization structure. Structure हमने बनाया था, एक hierarchy बनाई थी, authority to responsibility relationship बनाया था. Those all have to be followed. Now, what is the difference between human resource and staffing? Staffing आपका जो है एक छोटा portion है. Human resource is having many wings. Human resource are the foundation of any business. The right people can take your business to the top. The wrong can break your business. It's a very गलत इंसान होगा तो होगा क्या, काम नहीं होगा, टाइम से आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, टाइम से डिलीवरी नहीं होगी, and what will happen? It will definitely hamper your business. Hence, staffing is the most fundamental and critical drive of an organizational performance. और आज की डेट पर आपको पता है when we talk about the MBA, पहले क्या होता था, staffing was not considered that much good. मतलब ठीक है, जॉब मिल गई, हो गया, ठीक है. आज की डेट पर क्या ना कि staffing has become a proper, आपका एक पूरा एक सिस्टम बन गया है. I have seen this as my father and my daughter, my husband, मैंने देखा है. मेरे पापा जब काम करते थे, he was working in one of the very best organization, त्रिवेणी इंजीनियरिंग. Then he was working with LML, लोहिया machines में काम करते थे. And at that time, it was just like कि बस ठीक है, तुम काम कर रहे हो, तुम्हें सैलरी मिल रही है, तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है, इट्स ओके. देयर वॉज नो अदर, हमें मतलब कि कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती थी जिससे कि उनको पकड़ के रख लिया जाए. ठीक है, काम कर रहे हो करो, नौकरी पे रहते हो रहो, छोड़ के जा रहे हो जाओ. टुडे इट इज नॉट लाइक दैट. टुडे इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एवरी कंपनी वांट्स कि वो अपना सीक्रेट किसी और के साथ शेयर ना करे, और स्टाफ उसमें से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. क्योंकि मैं अगर कहीं काम कर रही हूँ एंड इफ आई हैव चेंज माय ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे पुराने ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं वो पता होंगे. टुडे द कंपनीज डोंट वांट इट. देन टुडे वी आर आल्सो लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, complicated behavior. Human resources are the most important asset of an organization. The ability of an organization to achieve its goal depends on the quality of human resource. Why आज की डेट पर MBA या कोई भी मास्टर्स इतना ज़्यादा हो रहा है? Because now we understand the meaning of qualifications. Thus, staffing is very important managerial function. No organization can be successful unless and until it fills the various positions in the structure with right kind of people. Proper staffing ensures the following benefits. Discover, अगर आपकी स्टाफिंग की पॉलिसी अच्छी है तो आप सही कॉम्पिटेंट जो आपके पर्सोनल्स हैं उनको लेकर आओगी. दैट विल हेल्प यू, और राइट पर्सन राइट जॉब में तो परफॉर्मेंस आपका हाई होगा. इट ऑल्सो एंश्योर्स अ कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज, क्योंकि आपके पास जितने भी स्टाफ होंगे दे वुड बी प्लानिंग प्रॉपरली. इट एंश्योर्स maximum utilization of human resource. देखिए बेटा, there are two aspects.
there are two aspects. One is overmanning. Overmanning मतलब ओवर यूटिलाइजेशन, एक इंसान से दो इंसान का काम करवा लिया. और अंडर यूटिलाइजेशन, जो मैंने बताया, इंसान में काबिलियत है बट ही हैज नॉट बीन गिवन. सर्टेन टाइम्स अ पर्सन इज सिटिंग आइडल, दूसरा डबल काम कर रहा है. एक जगह पर ज्यादा जो लोग हैं, दूसरी जगह पर लोग हैं ही नहीं. सो इट एंश्योर, अगर हमें स्टाफिंग पता है तो वी नो विच डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ हैं, कितना चाहिए, वी नो दैट. गुड staffing policies ensures job satisfaction and morale of employees. क्योंकि असेसमेंट होती है, रिवॉर्ड मिलते हैं. हम लोगों ने पढ़ा था इन डायरेक्टिंग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. That is why staffing is very, very important function of management. It must be performed efficiently. If right employees are not there, it will lead to wastage of time, effort, energy, material, low productivity, poor quality. The enterprise will not be able to sell its products profitably. भाई जो मार्केटिंग का बंदा है, द पर्सन हु इज एक्सपर्टीज इन मार्केटिंग वुड एंश्योर गुड मार्केटिंग पॉलिसीज. द पर्सन हु इज एक्सपर्टीज इन प्रोडक्शन विल एंश्योर quality production. And it is very important, right kind of people, right number, right time. And time to time ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक इंसान, अ पर्सन इज नॉट अ बॉर्न पर्सन. नाउ ये आपका जो था लास्ट ईयर, इट वाज नॉट देयर इन what we call as in your syllabus, but now it is there. What is the difference between human resource and staffing? Staffing is a function which all managers need to perform. It is a separate and specialized functions, and there are many aspects of human relations to be considered. हर जगह पे हमें देखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में हमें कितने लोग चाहिए. Those who are trained, motivated to work in harmony with the goals of organization. Thus, staffing is seen as a generic. It deals with the human element. Managing the human component is very important. मैंने आपको बताया कि अगर आपका स्टाफ अच्छा है, वो मोटिवेटेड है, तो आपका काम भी बहुत अच्छा होगा. और उसको मोटिवेट करने के लिए नॉट ओनली द मनी, बट समटाइम्स यू यूज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. समटाइम्स यू आर गिविंग मोर. उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स पे आप देखते हो, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं 5 जनों को ट्रेन कर रही हूँ, मुझे नहीं पता वो 5 जने मुझसे क्या उम्मीद करते हैं. It is the responsibility of all the managers to deal with select people to work for organization. When the manager performs the staffing function, his role is slightly limited. क्यों? क्योंकि आपको करना है recruit, introduce a new employees, improve their performance, develop their ability, protect their health, physical condition. इतना ही आपको करना है. Whereas as the organization grows, number of persons employed increases, हमें एक HR डिपार्टमेंट अलग से बनाना पड़ता है. और इस HR डिपार्टमेंट में we will be having number of expertise. The number of human resource specialists and size of department gives an indication of the business also. That means for a very large company, HR department itself will contain specialists for each function. और उसके अंदर आपके जो है अलग अलग ड्यूटीज होंगी. रिक्रूटमेंट एक है. एनालाइजिंग द जॉब, हमारे यहाँ पर क्या क्या जॉब्स आ रही हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, हमें उसके लिए किस तरीके का, देखो जैसे आजकल क्या है, द न्यू मतलब की जो वर्ड है वो है AI.
Not every company is acquainted with AI system. अब जो ह्यूमन रिसोर्स वाला होगा उसको एआई के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, शायद उसको ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, फिर उसको देखना पड़ेगा कि इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग एआई इन माय कंपनी तो मुझे किस तरीके का इंसान चाहिए होगा, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होंगी, उसे मैं कौन से लेवल पर रख सकता हूँ, what should be the compensation and incentive plan, that all has to be done. Developing the compensation and incentive plans, training and development of employees for efficient performance. Pehle training was not at all part of any staffing. It was not, but nowadays it is very important that the companies are building up training programs. Alag alag. The training program is not only for your work, even for other areas also. Maintaining the labor relations with the government, with the union, ये भी रखना पड़ता है, क्योंकि यूनियन अगर मतलब कि जो वर्कर्स हैं दे गो ऑन स्ट्राइक, that will disrupt the entire company's growth. Handling grievances and complaint, शिकायतें, कोई भी उनको प्रॉब्लम्स है, आजकल वी हैव टू मेक डिफरेंट कमिटीज ऑल्सो. Providing them with social security, welfare by giving them health, या फिर आपके जो इंश्योरेंसेस हैं, ये सारी चीजें पहले नहीं थी. ग्रुप इंश्योरेंस आजकल they have been added. Defending the company in lawsuits and avoid legal complications. So that's very important. As I said, human resource management has replaced the traditional concept of labor welfare and personnel management. आज ऐसा नहीं है. Emergence of trade union movement led to need of person who could act as an effective link, और तब हमारा यूनियन बना था. पहले यूनियन नहीं था, लोग चले जाते थे. देन यूनियन बनना शुरू हुआ कि एक इंसान पूरे लेबर्स को रिप्रेजेंट करेगा. then concept of labor welfare officer came, जो कि देखेगा. बट ही वॉज लुक्ड ऑन बोथ बाय वर्कर्स एंड ओनर्स. ओनर्स कहते थे वर्कर्स का चमचा है, वर्कर्स कहते थे वो ओनर का चमचा. Therefore, with the introduction of factory system, thousands of persons began to be employed under one roof. एक इंसान होता था. इससे हमारा पर्सोनल मैनेजर बना. ह्यूमन रिलेशन अप्रोच रिकॉग्नाइजेस, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको जल्दी करवा रही हूँ. recognizes the human factor. Fast changing technological development, however, necessitated new skill development, training of employees. जो मैंने भी आपको बताया, पहले आपके ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था. It's okay. But today, when you start a person as a staff in your company, you also have to develop all the training methods. वो जब कंपनी में आता है तब, जब वो कंपनी में रहता है तब, उसके बाद when he is promoted, when he is transferred, हर लेवल पर we need the training and development. So that is why staffing is an inherent part of human resource. It is a practice finding, evaluating, establishing the working relation with people for a purpose. So जैसे आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग भी आपका एक फंक्शन है. An essential function which is done by human resource development. Staffing process, ये आपका बिल्कुल, क्योंकि प्रोसेस है तो द प्रोसेस विल बी गोइंग इन लाइन, मतलब पहला दूसरा तीसरा, इट विल फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हम ऑलरेडी कर चुके हैं. स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर, रिक्रूटमेंट, देन आपका सिलेक्शन, वो. सो नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट?
फर्स्ट, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. दिस इज आपका वर्क फोर्स माइनस वर्क लोड. यहाँ पे बना हुआ था पहले तो, आई डोंट नो हाउ इट इज देयर और नॉट. वर्क फोर्स या माइनस वर्क लोड, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन आवर कंपनी, व्हाट आर द वर्क टू बी डन. हमें हर एक लेवल पर कितने काम, कितने मतलब कि एम्प्लॉयज वर्कर्स चाहिए, वर्क का लोड. फिर अगर पुरानी कंपनी है तो यू विल बी ऑलरेडी हैविंग द वर्क फोर्स. अगर नई कंपनी है तो आपको कितना चाहिए. You are aware while designing the organizational structure, we analyze, undertake an analysis of decision and decision making levels, authority to responsibility relationship. उसमें आपका वर्टिकल, ऊपर कौन नीचे कौन, यानी कि हमारे पास क्लैरिटी होती है. Clearly, performance of each job necessitates the appointment of a person with specific set of educational qualifications, skill, experience. Thus, understanding manpower requirement is not merely a matter of knowing how many persons, लेकिन किस तरीके का हो वो भी तो ज़रूरत है. Then we also need to give, some benefits to the women from the backward communities, persons with specially abilities. आजकल वो भी बहुत ज़रूरी है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा. Operationally, understanding the manpower requirement would necessitate workload analysis, यानी कि काम कितना है, and workforce analysis. ये आपके पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट पर. वर्कलोड का मतलब है assessment of the number and types of human resources necessary for performance of various jobs for the accomplishment of the objectives. Workforce का मतलब how much you have. It will reveal whether we are understaffed, overstaffed, optimally staffed. अगर overstaffed हो तो दैट इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल. आप उन स्टाफ को किसी और डिपार्टमेंट में डाल सकते हो. अगर अंडर स्टाफ्ड हो तो आपको और लेकर आना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बिकम अ बर्डन ऑन अदर पीपल. अ सिचुएशन ऑफ ओवरस्टाफिंग समवेयर वुड नेसेसिटेट एम्प्लॉय रिमूवल और ट्रांसफर. अ सिचुएशन ऑफ अंडरस्टाफिंग मींस नेसेसिटेटिंग न्यू स्टाफ. तो हमें वो देखना पड़ेगा. फिर ये भी है कि भाई ओवर स्टाफ्ड है लेकिन उसके पास वो डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस है, वो पर्सनालिटी है, वो भी हमें देखना पड़ेगा. द सेकेंड वन इज, पहले हमने जो है एनालाइज कर लिया है हमारे पास कौन कौन सा काम है, कितना है, और हमारे पास फिलहाल कितना स्टाफ है, और अगर नई कंपनी है तो हमें कितने स्टाफ की जरूरत है. अब ये हमने एनालाइज कर लिया, ये हमारा पहला स्टेप था. दूसरा स्टेप है रिक्रूट करना. इसको ये जो लिखा हुआ ना बच्चा, दिस इज आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ prospective employees by stimulating them to apply for jobs. मतलब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग आपकी कंपनी में अप्लाई करें. It may be in the process of writing the job description. जब हम situation vacant लिखते हैं ना, wanted male or female, post graduate, minimum 10 years experience, MBA for a firm, ये हमारा होता है रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट. उसको हम अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, अपने गेट पे डाल सकते हैं, प्रिंट मीडिया में दे सकते हैं, वेब मीडिया में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में दे सकते हैं. मीन्स टू क्रिएट अ पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स. अब हमारे पास हो सकता है कुछ जगहों पे वी मे यूज इंटरनल सोर्स, यानी कि हमें एडवर्टाइजमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमारे और किसी ब्रांच में, किसी और डिपार्टमेंट में अगर ज़्यादा स्टाफ है
तो हम उसको लेकर आ सकते हैं इसके लिए। बट इफ वी वांट वाइडर टैलेंट, वी वांट मोर चॉइस, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स लेना चाहिए। देन आपने एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्स देख लिया। इंटरनल मतलब ए डिपार्टमेंट में एक इंसान काम कर रहा था, उसको बी डिपार्टमेंट में डाल दिया, हॉरिजॉन्टल। और मैनेजर छोड़ के चला गया, उसका जो जूनियर मैनेजर था उसको प्रमोट करके उसको पोजीशन दे दी, वर्टिकल। वेयरएस एक्सटर्नल सोर्सेज है जो हम कंपनी के बाहर, वेयर वी आर एडवर्टाइजिंग through web media, through newspaper, through print channel, through different channels, campus placement, और हम जो है लोगों को इंटरव्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। अब आपने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, आपने उनको बोल दिया, अप्लाई कर दिया, अब आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। Selection is the process where you are choosing among the pool of prospective job candidates. Even in case of highly specialized jobs where choice space is very narrow, आपको selection process लेकर चलना पड़ता है जिससे आपको best मिले, and it enhances the self-esteem and prestige of those selected and conveys them the seriousness. Even highly qualified, highly मतलब कि जहां हमें मतलब कि सबसे हाईएस्ट उसमें जॉब चाहिए। सिलेक्शन में टेस्ट भी हो सकते हैं, इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, जो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। वी विल बी हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ। देन वंस हमारे जॉब मतलब कि थ्रू द टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, नाउ वी विल प्लेस देम। Joining a job marks the beginning of socialization of the employee at workplace. उसको थोड़ा ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। He would be taken into the workplace, उसको अपना जॉब बताया जाएगा, उसको familiarize किया जाएगा। Orientation is thus introducing the selected employees to other employees, familiarizing him with the rules and policies of organization. Orientation मतलब उसको वाकिफ करवाना। Placement refers to the employee occupying the position or post which the person has been selected. उसको प्लेस कर दिया, उसको पहले वाकिफ करवाया, उसको बता दिया ये आपकी जगह है, यहाँ आपको काम करना। अब what people seek is not simply a job but a career. जॉब पर कब जाते हैं? when we require money, and career is which is for a long term, which defines us. Everyone must have the opportunity to rise to the top. हमने Maslow's theory पढ़ा था, that is self actualization, basic physiological, then आपका security, then आपका self esteem, लेकिन आपका self actualization, और वो कब हो सकता है? when we are facilitating the employees learning. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग सेंटर्स लग सकते हो, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे आजकल लोग जो कंपनीज हैं वो अब ग्रैड एंड अदर मतलब कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ उन लोगों ने टाई अप कर रखा है, तो टाइम टू टाइम वो लोग आकर जो है नई नई चीजें सिखाते हैं। ट्रेनिंग हैज बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एंड टू द एम्प्लॉय ऑल्सो, क्योंकि एम्प्लॉय का मोटिवेशन और कॉम्पिटेंसी बढ़ता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टैलेंटेड पीपल को रख सकता। अगर आपकी कंपनी में ऐसा नहीं होगा तो आप छोड़कर जाओगे। तो आजकल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जो है काम किया जाता है। देयर आर मेनी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इनटू दीज, उन्होंने अपने आप को जो है दे हैव गिवन दी, दे हैव टाइड अप विद देम, एंड मेनी आजकल तो बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है छोटी छोटी ट्रेनिंग्स देती रहती हैं। परफॉर्मेंस, अब जॉब पर वो बंदा आ गया है, उसको ट्रेनिंग मिल गई है, वो काम कर रहा है,
after the employees have undergone a period of training, they have been on the job for some time. अब हमें ये भी तो देखना है ना, हमने जिसको रखा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे पता लगेगा? तो जो इमीडिएट बॉस होता है, अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन में जो इमीडिएट बॉस होता है, वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेज करता है, मीन्स दैट इज इवैल्यूएटिंग, एंड देयर इज सम प्री-डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, उसके बारे में फीडबैक, उसका खुद का इंटरैक्शन विद दैट पर्सन, उसको जो जॉब दिया था, हाउ मच he or she has been able to do, was it satisfactory to the company's law, ये सब कुछ देखा जाता. Then once अप्रेजल से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, और अच्छे अप्रेजल से आपको प्रमोशन भी मिलता है. It becomes necessary for all the organizations to address career related issues and promotional avenues. Promotions हर कंपनी का अपना एक पॉलिसी है. किसी कंपनी में ऑटोमेटिक प्रमोशन होता है, 3 years हो गए, आपको नेक्स्ट लेवल पे डाल दिया जाएगा. अब ये जो नेक्स्ट लेवल है बेटा, ये कैसे होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आपका हिरार्ची है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल, उनके बीच में 1 2 3 4 5 होता है. तो नेक्स्ट लेवल पे उनको अपने आप ही प्रमोट किया. किसी जगह पर ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क यू आर प्लेस्ड इन द इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसमें ज्यादा पे, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन. देन the company also needs to establish the wage and salary, and there are different pay plans. It refers to all the pay or reward going to employee, the financial one, wages, salaries, incentive, commission, bonus, then insurance pay, paid insurance and vacations. There can be टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड आपके हो सकते हैं. टाइम बेस्ड आपका होता है जो सबको मिलता है, सैलरी, वेजेस, एंड परफॉर्मेंस होता है आपका, दैट इज आपके इंसेंटिव्स. एंड आजकल कंपनी में पे प्लस incentives have become a very important aspect. In fact, आज की डेट पर even in the government also they are giving the incentives. अगर आप टारगेट को पूरा करते हो तो you are given the incentives. पे important है. Then bonus देना to the staff, that is also important. But target based incentives जो है, it is becoming popular. आपने टारगेट अपना पूरा किया, you will be getting the benefits. Besides, there are some other factors. मतलब ये सिर्फ फैक्टर नहीं है जिससे हम वेज डिसाइड करते हैं, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, इनके अकॉर्डिंग भी. दूसरा, हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने इस लेवल पर कितना सैलरी दिया है. So staffing includes acquisition यानी कि acquire करना, retention यानी कि उनको ठहराना अपनी कंपनी में, development, appraisal, promotion and compensation. We need to look after many factors. जैसे मैंने बोला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है, ज्यादा है तो आपको सस्ता लेबर मिल जाएगा, बट लीगल पॉलिटिकल कंसिडरेशन ज्यादा है तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, बिकॉज इफ द कंपनी इज अंडर स्क्रू, लेबर लॉ को आपने तोड़ा तो हो सकता है आपकी कंपनी का बंद हो जाए. देन द कंपनीज इमेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये हमेशा टॉप देते हैं. द जनरल इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एवरीथिंग. नाउ कम्स रिक्रूटमेंट. हमने पढ़ा था पहले वर्क लोड एंड वर्क फोर्स, वो पहला था. अब आता है रिक्रूटमेंट. एंड इन रिक्रूटमेंट यू हैव एक्सटर्नल एंड इंटरनल. Recruitment refers to the process of finding possible candidates for the job
It has been defined as process of searching of employees, stimulating them to apply. Advertising is common part of recruitment, बट ज़रूरी नहीं है आपको एडवर्टीजमेंट ही देना है. आप जॉब सेंटर कैंपस इंटरव्यू बहुत सारे हैं. फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. इसमें आपका दो आएगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. राइट, यू हैव टू, इसमें और आपको यही वाला लर्न करना है. इंटरनल के फायदे, इंटरनल के नुकसान, एक्सटर्नल के फायदे, एक्सटर्नल के नुकसान, और जितने भी इनके सब कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन, देन आपके एक्सटर्नल के अंदर कैंपस प्लेसमेंट, ये सब आपको याद करना. इंटरनल मींस ट्रांसफर. ट्रांसफर इज अ हॉरिजॉन्टल, यानी कि उस डिपार्टमेंट में आप थे, वहां आपका वो डिपार्टमेंट बंद हो गया, आपको सेम पोजीशन पे दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर. It involves shifting of an employee from one job to another, one department to another, one shift, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में थे इवनिंग में ले आए. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके स्टेटस में कोई चेंज नहीं है. कुछ ड्यूटीज में चेंज हो सकती है बट नॉट सैलरी. ट्रांसफर इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज. जहां ओवर स्टाफ्ड हो तो आप लेकर जाते हो. इट इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. ये पेपर में आता है. हॉरिजॉन्टल का मतलब आप उसी लेवल पर हो. आप एज अ मैनेजर थे इन ए डिपार्टमेंट, आप एज अ मैनेजर आ गए बी डिपार्टमेंट में, आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ. शॉर्टेज ऑफ सुटेबल पर्सोनल इन वन ब्रांच में बी फिल थ्रू ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच. या हो सकता है कि आपने एक नया ब्रांच स्टार्ट किया है, तो आप चाहते हो कि जो एग्जिस्टिंग मैनेजर है वही उस पोजीशन को उस ब्रांच में ले ले. जॉब ट्रांसफर्स आर आल्सो हेल्पफुल इन अवॉइडिंग टर्मिनेशन. अगर इंसान को टर्मिनेट करना, उसकी जगह उसे दूसरी जगह ले जाओ. It should be ensured that the employee to be transferred is also capable of performing it. Transfers can be used for training of employees for learning different jobs. Promotion, vertical. Business enterprises generally follow the practice of filling higher job by promoting employees from lower job. क्यों? Existing staff जो कि already trained है, अगर उसको हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं तो उसको कंपनी के बाकी कंडीशन से फैमिलियराइज नहीं करवाना पड़ता. प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉइज टू अ हायर पोजीशन, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड पे. दैट इज व्हाई इट इज अ वर्टिकल. This practice helps to improve the motivation, loyalty and satisfaction, and it has a great psychological impact. क्योंकि हर कंपनी में प्रमोशन जो होता है दैट्स अ बून. कोई भी एम्प्लॉय जिस पोजीशन में वो स्टार्ट कर रहा है उसमें रहना नहीं चाहेगा. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज? एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, क्योंकि अगर नौकरी से ना निकाल के उसे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया तो कम से कम उसको ये मोटिवेशन होती है कि मुझे नौकरी से तो नहीं निकाला. एंड अगर प्रमोट किया है तो उसका परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रहा है. द एम्प्लॉयज वर्क विथ कमिटमेंट. देन जहां प्रमोशनल आपके स्कीम्स एंड कंपनी में बाकी लोगों को भी लगेगा कि हम भी अगर काम करते हैं तो वी विल ऑल्सो बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल. सेकेंडली, इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. क्यों? आप जब बाहर से लोगों को लाते हो तो आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, आपको ट्रेन करना पड़ता है, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है इन टेकिंग द इंटरव्यूज एंड ऑल. वेयर इन द इंटरनल सोर्सेस आपको वो सब नहीं करना, आपको पता है. इट इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब, एंड दे डोंट ऑल्सो नीड द induction training. Induction matlab familiarizing. Then it has the benefit from surplus department and there to understaffed, and it is cheaper. But हर जगह पर तो आप
इंटरनल लेकर नहीं चल सकते ना। जहां आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए, यू वांट अ पर्सन हु शुड बी हाईली क्वालिफाइड, आपके पास नहीं तो आप क्या करोगे? देन इफ यू वांट फ्रेश टैलेंट, दैट वुड नॉट बी देयर. When vacancies are filled through internal promotions, the scope for induction of fresh talent is reduced. It involves danger of inbreeding by stopping infusion of new blood. नया ब्लड है तो नेचुरल है बेटा कि मुझसे जो नेक्स्ट लेवल होगा, he or she might be having better understanding of certain new words. The employees may become lethargic. उनको पता है हमें तो टाइम बहुत, हमारे जितने भी गवर्नमेंट में जो जितने भी था पहले यही प्रॉब्लम होता था कि एवरी 3 इयर्स 8 इयर्स आपको प्रमोशन मिलना है, बैठ जाते थे हमें क्यों काम करना है. देन अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स. भाई उनके पास वो पुराना स्टाफ ही नहीं है. द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज में बी हैम्पर्ड. क्योंकि नया ब्लड होता है तो हमें डर होता है कि मेरी जगह कोई भी नया आ सकता है. फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि एक इंसान जो काम कर रहा था आपने उसको हटा दिया, उसको आपने दूसरी जगह भेज दिया. नाउ उस जगह को भी तो कोई फिलअप करेगा. दैट कैन बी देयर. मे बी द पर्सन इज नॉट दैट मच, इस वाले ग्रुप में वो बहुत अच्छे से कर रहा था बट वहां जाकर वो नहीं कर पाया. तो दिस कैन बी देयर. आपके limitations are there in your paper. Now the next, which we will be definitely doing in the next session, external sources. Now in the external sources, what are the kinds of questions you will be having? ये जो आपके बने हुए हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, then placement agencies, campus recruitment, recommendation of employees, advertising on television, web publishing, labor contract, ये आपके important है. आपको दे दिया जाएगा that in this the company had given the contract to a person. तो क्या है? Identify. तो आपको बताना पड़ेगा that is labor contract. इसमें ये क्वेश्चन आता है. सिलेक्शन में आपके क्वेश्चन में क्या आ सकता है? आपको जो मैंने उस दिन बताया था कौन सा स्टेप है. देन ये जो टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है. और ये जो बाकी है ये स्टेप्स लिखने को आता है और कुछ नहीं आता. देन डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है ये दिस वन, ये आता है पेपर में. देन अगेन ट्रेनिंग मेथड्स में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता कि कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग है. अप्रेंटिसशिप, पहले हमारा जो है सिर्फ अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप था. दीज ऑल वर नॉट देयर. एंड इन द एक्सटर्नल आपके सिर्फ जो है वेस्टिब्यूल था, बट नाउ दीज आर ऑल देयर. दिस इज what we will be doing in our next class in the chapter staffing.